Now in this module we will learn join sentences using if clause. If is a peculiar conjunction and it tells exactly the opposite meaning of the sentence when it has been added as a conjunction in a sentence. It's a peculiar conjunction. Now joining sentences using if clause, and today we learn type 2. And type 2, whenever we use type 2, when we have the given sentence is in simple present tense. Now, Raju works hard, so he will pass. Now, what would we get? Works here. S with the verb. It means it's simple present tense, or we can also call a present indefinite tense. Now, what we should do? We will follow this structure of using if, then if clause. It's type 2. If plus subject plus second form of the verb, then would plus first form of the verb, which means simple present tense. Now, it can join only present tense. This structure is used only for present tense. ये स्ट्रक्चर हम तभी यूज करेंगे जब हमें जो सेंटेंसेस गिवन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो. सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है या तो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या होगा वर्ब के साथ में एस या ईएस. दिस इज द वे. और या फिर होगा डू या डस. ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को. अब हम यही सेंटेंस, वी कैन टेक द सिमिलर सेंटेंस. नाउ व्हाट वी शुड डू? फॉलो दिस स्ट्रक्चर. इफ सबसे पहले लगा दिया हमने इफ. नाउ सब्जेक्ट इज राजू. इफ राजू वर्कड हार्ड, he would pass. Would pass. बस ये हो गया. Simple, easy. Had done. Raju worked hard. He would pass. But is a क्या मार्क्स मिलेंगे ऐसा लिखने से? नहीं मिलेंगे. ये बिल्कुल रॉन्ग है. रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टेप्स होती है जो हमें फॉलो करनी होती है इस स्ट्रक्चर के लिए, इस टाइप 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आगे तक देखिए, ये रॉन्ग है. हम करेक्ट सेंटेंस की बात करते हैं. क्या होता है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न. नाउ जस्ट सी. नाउ डिफिकल्टी अरोज when, it's just an example. Now difficulty arose when we just do I have no wings so I cannot fly. I have no wings so I cannot fly. Now this work we had to do step by step. I have no wings so I cannot fly. Now it's a negative sentence. Now if is a peculiar conjunction. So in such kind of sentence we have to work step by step. I have no wings so I cannot fly. First step is you have to identify the verb. Circle it. I'll just telling you the easy way. Just circle the verbs. Wait, have is the verb here. So we have to change this into second form of the verb, and then this has to be changed as would. Then फर्स्ट स्टेप था हमारा आइडेंटिफाई किया हमने वर्ब को. नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा फॉर्मूला है उसमें यहाँ फिट कर दिया हमने. इफ देर इज नेगेटिव सेंटेंस, नाउ दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, देन इट वुड बी चेंज्ड एज पॉजिटिव. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा. सो नो और नॉट इज रिमूव्ड. इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा. ये हमारा था स्टेप 2. देन नो एंड नॉट इज एंड इफ दिस पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हम इसमें नो और नॉट को ऐड करते. ठीक है, क्या करेंगे अब इस सेंटेंस के साथ हम? इफ आई, सेकेंड फॉर्म ऑफ द हैव इज हैड. इफ आई हैड विंग्स, आई वुड what's the verb? Fly.
If I had wings, I would fly. Now look at the second sentence. थोड़ा सा tricky है. I am not a bug, so I will not fly. Now we just identify the verbs. I am not. I will not fly. These are the verb. So what we should do? First we'll change it into the second form of the verb. Then would. Then first form of the verb. Okay. So क्या हो जाएगा? If, और जो नेगेटिव है उसे हमें पॉजिटिव करना है. If I were a bug, I would fly. तो समझ में आया? इसका स्टेप्स होंगे हमारे. स्टेप्स, पहला स्टेप होगा हमें कि हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है. वर्ब को सर्कल करना है. स्टेप 2 होता है हमारा कि अगर नो है तो उसको हमें रिमूव करना है, और अगर नो नहीं है तो उसको लिखना है उस सेंटेंस में. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. He is not a king, so he will not be a prince. So, actually his son will not be a prince. He is not a king, so his son would not be a prince. क्या करें सबसे पहला स्टेप हमारा? We'll just identify the tense. ये tense फॉलो करें हमारा स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या था हमारा? इफ, देन सब्जेक्ट, देन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्या करेंगे? इस चीज को हमें सेकेंड फॉर्म में करना है और इसको हमें वुड फर्स्ट फॉर्म में करना है. सो और नॉट इज रिमूव्ड. सेकेंड स्टेप क्या था? नॉट को रिमूव करना है क्योंकि नॉट है यहाँ पे. तो क्या करें हम? इफ सब्जेक्ट ही है यहाँ पे, ही. नाउ इज का क्या कर देंगे हम? वॉज. अ किंग, हिज सन वुड बी अ प्रिंस. ओके, इजी. स्टेप बाय स्टेप करना है हमें. बहुत इजी. रफ वर्क होता है, थोड़ा सा मैथ्स में होता है. अब यहां तक तो बात थी नेगेटिव सेंटेंस की. लेट्स टेक अ पॉजिटिव सेंटेंस. आई एम अ डॉक्टर, सो आई ट्रीट द पेशेंट्स. नाउ फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द वर्ब आई ट्रीट. ठीक है, क्या करना है? इसको सेकेंड फॉर्म में करना है और इसको वुड, देन फर्स्ट फॉर्म. इफ आई, एम का क्या हो गया? वॉज. यहाँ पे वर भी होता है. हम आई के साथ में वर भी लगा सकते हैं. पहले वर ही होता था, बट नाउ डेज वी कैन ऑल्सो यूज वॉज. इफ आई वॉज वर, बोथ आर करेक्ट. इफ आई वॉज, इफ आई. नाउ नॉट कैसे आ गया? क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव था, तो इफ जब आ जाता है ना, तो इफ वुड टेल अस एग्जैक्टली द ऑपोजिट मीनिंग. सो इफ आई वर नॉट अ डॉक्टर, आई वुड नॉट ट्रीट the patients. I think now you can got it. अब सुनना है थोड़ा सा, क्यों लगाते हैं हम if. Now it would be a question in your mind, student, that why positive is changed into negative. So it is all because of the use of if. If is all because your use of the if. If is a peculiar conjunction because if we need to change the meaning of the sentence, that means it tells us it. ये हमें exactly opposite meaning बताता है sentence का जब हम इसको use करते हैं as in a subjective mood. And what till then, goodbye. I think you will understand this type 1. Let's see. Resist again. Okay. Have a nice day. Just subscribe and like English Book.